Welcome back. It is the part two of the case study that we have been taking up. Let's see. Now it speaks about your posted as SP. I never understand why only they talk about superintendent of police, why they don't bring revenue services, why they don't bring railway services. Now this also creates a stereotype, and this is very important from the ethics perspective. People of different religious communities are living together peacefully, famous for architectural heritage, regularly visited by tourists around the world. Incident in the state nearby, people of two started fighting over religious issues. Spillover Spillover has effect over the whole country. In your own area of jurisdiction, from the circulation of some hate speech videos, potential to destabilize law and order situation, and you are also aware that some outsiders with dubious intentions have started pouring in your district. In one locality, a shopkeeper who had earlier filed a complaint regarding threats he received for posting something on the internet is found murder in the cold blood. So this is again taken up from the real life examples. This incident stunned the whole nation. You are being informed that hundreds of people of community to which Sukyo belong are planning to stage a massive protest in your district. Options available to you to ensure the law and order situation in the district remains stable and provide a detailed account of your course of action. Do you think that present legal and institutional mechanisms are sufficient to tackle the meanness of hate speech in the society? I think both the questions are well framed. Let's see the case study, please. The case study reflects that we stand, divide, fall. I like it. This is a good start, good approach, well made efforts after a couple of months. So hate speech is not defined explicitly in the Indian laws. Simply, it means spreading enmity between simply. So such a big thing, and you are writing it simply. It means taking it a casual direction, not worthy, not fit. You have to understand the gravity of the words and the movement. Society on the basis of religion, race, caste, culture. Section 153A of IPC deals with it. Okay, social media, internet, SIM troika. Okay, fine, I like that. The troika is misused for politico economic interest. तो आपको पहले पैराग्राफ में आप लेके आ सकते हैं कैसे फियर स्टोक किया जाता है, कैसे इरेशनल आइडियाज को प्रमोट, कैसे इरेशनैलिटी को प्रमोट किया जाता है, कैसे सेंसिटिव बात को बार 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 उसी पर जोर दिया जाता है। तो वो आइडियाज लेके आने चाहिए। चलिए आगे, चलिए एसपी साहब, चलिए चलिए। सोशल मीडिया बेस्ड, वेट वेट वेट, सोशल मीडिया, सोसाइटी, टू स्टेट्स, पुलिस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, बिग टेक कंपनीज। सोसाइटी में भी कम्युनिटी लीडर्स होने चाहिए, तो वो आपको बताने चाहिए। तो व्हाट आर द ऑप्शंस? चलिए ऑप्शन देखते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर, इशू एडवाइजरी एंड अलर्ट फॉर टूरिस्ट। हाँ, अलर्ट कर दीजिए, काम मत कीजिए किसी को, सबको अलर्ट कीजिए, किसी को विश्वास मत दिलाइए, सबको ये बोलिए भाई बच सको तो बच लो, हमारे बस का कुछ नहीं। तो आप एडवाइजरी और अलर्ट कीजिए ताकि वहां कोई रह ना पाए। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, क्योंकि हमारे बस की कुछ नहीं। बहुत अच्छा है ये शॉर्ट टर्म मेजर। इससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमजोरी और जो उसका कहना चाहिए हमें जो कावर्डिनेस है वो पूरी तरह से निकल के आती है। ये तो बोला नहीं कि सब लोग आराम से चलिए, सब लोग जो हो रहा है वो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने एडवाइजरी और अलर्ट्स दिए हैं टूरिस्ट को, जैसे यूके और यूएस अलर्ट देते हैं कि यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए। सील द स्टेट बॉर्डर, मतलब आपने इन्फ्लेट्रेटर्स जो चाहते थे कि वो पूरे राज्य में हक्का बक्का, और पूरे राज्य पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो जिस तरीके की जो सनसनी फैलनी चाहिए, उसको एसपी साहब ने स्टेट बॉर्डर्स को सील करके कर दिया। बॉर्डर सील कर दीजिए, कोई ना आएगा ना कोई जाएगा, ना टमाटर चाहिए ना अंडा चाहिए, ना कोई आना जाना चाहिए, सब कुछ रोक दो। इन्फ्लेटेटर्स को पकड़ने की जगह आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को पकड़ लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो चौका लगना चाहिए वो भी लगाया, सस्पेंड द इंटरनेट, कर दो इंटरनेट का भी बंद, इसको भी बंद करो, डिस्ट्रिक्ट को बंद करो, टूरिस्ट को अंदर करो। और आगे देखते रहे, बच्चों को तो रखा ही नहीं। स्कूल बंद होने चाहिए, कॉलेज बंद होने चाहिए, बाजार बंद होने चाहिए, वो एलिमेंट कहाँ है? वो तो आया ही नहीं कहीं पे भी, वो भी आने चाहिए थे। इम्पोज सेक्शन 144, वाह, ये भी आपने सीधा लगा दिया। कोई ना बात करेगा, ना इकट्ठा होगा, ना कुछ होगा, रह क्या गया। ऐसा करने के बाद यदि इस इन जो आपने अभी कदम बताए, अगर ये कदम हम उठा लेते हैं, तो उसके बाद तो कम्युनल वायलेंस तो क्या, जिंदगी में कभी कुछ ना हो। ये सारी चीजें कर दीजिए, सब चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी, कुछ करने को बचेगा ही नहीं।
आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन क्या वाकई ये चाहिए, ये सोचने वाली बात है। हॉटलाइन टोल फ्री नंबर तो है ही। टीवी मीडिया रिस्पॉन्सिबल एथिक्स एज फार एज न्यूज रिपोर्टिंग इज कंसर्न, बिग टेक कंपनीज रिमूव द हेट स्पीच। चलिए आगे चलिए। ऑन इमीडिएट बेसिस लॉ एंड ऑर्डर शुड बी रिस्टोर्ड। अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी है, किसने पोस्टर लगाया, पुलिस के पास मुखबिर होता है, टीम होती है, आप ट्रेस कर लेते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद कम्युनिटी लीडर्स को लेते हैं, एनजीओ को लेते हैं, सबको बुलाते हैं, सारी चीजें हो सकती, तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो गजब कर दिया। चलिए लॉन्ग टर्म देख लेते हैं। एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, सर्च फॉर एविडेंस ऑफ कल्प्रिट्स। अरे एविडेंस भी करा जाएगा, कल्प्रिट्स पकड़े भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे कल्प्रिट? और जो एक एक्चुअल में जो एक केस की बात हो रही है उसमें भी सब कुछ यही हुआ, और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस केस के बाद भी शांति बनाए रखने के लिए कोशिश की गई, सब कुछ हुआ, वो पकड़े भी गए, और बाद में ड्यू जस्टिस की बात भी हुई। चलिए पहला पॉइंट मैंने मान लिया, दूसरा पॉइंट भी चलिए मान लिया। फॉरेंसिक एनालिसिस, स्ट्रेंथन सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स, अवेयरनेस। उसके अलावा समाज में जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं उनको कैसे रोका जाए? आखिर ऐसा क्यों होता है? गरीबी, पॉवर्टी, या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो ग्लोरीफाई करना, हमारा जो समाज में जो जिन विचारों को, जिन जिन आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए, ह्यूमिलिटी को जो प्रमोट होना चाहिए, जो पेशेंस को जो दिखना चाहिए, वो सारे एलिमेंट आपको लेके आने चाहिए। वो तो आप लाए नहीं, क्योंकि आप ऐसा सोच नहीं सके। करंट मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आपने वो बता दिया। चैलेंजेस एंड इश्यू रिगार्डिंग हेट स्पीच, लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक बात है, चलिए आगे चलिए, पहले भी बताया आपने। नीड फॉर ए स्पेशलाइज्ड लॉ, डीप फेक वीडियोस तो अलग बात है, वो तो अलग है चीज। यूज ऑफ एल्गोरिदम मॉडल, ठीक बात है। अच्छा, उसमें भी आपने क्या क्या वर्ड डाले, दिखाइए जरा जरा वर्ड देखे जाए। जिहाद, एब्यूजिव लैंग्वेज एंड कास्ट। ओके। भारत नए संहिता बिल, आपने बिल्कुल डैमेज कंट्रोल बाद में किया, लेकिन डैमेज पहले हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज कम टू द नेक्स्ट केस स्टडी। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन वन, इन्वॉल्व द अदर स्टेक होल्डर्स लाइक आईजी, डीआईजी एंड कंक्लूड ऑन द सिचुएशन थ्रू अ मीटिंग। ठीक है, चलिए। प्रोज क्या है? मैकेनिज्म होगा एक, ताकि आप सिचुएशन को रिजॉल्व करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है मीटिंग में। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रमोट कर रहे हैं आप। और इम्पार्शलिटी की बात हो सकती है, हो सकता है पार्शियलिटी भी हो, रेलेवेंस हो सकता है, आउटकम हो। दूसरा, इंगेजिंग विद द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सिनेरियो लाइक, अच्छी कोशिश है, चलिए ये भी। उसके बाद आपने पेट्रोलिंग कराई, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोलिंग के बाद आपने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स को आपने मेंटेन करने की बात की। तीसरा ऑप्शन है कि कोई एक्शन नहीं लिया और आपने वहां से अपने आप को बचा लिया, तो आई विल चूज ऑप्शन वन एंड टू। मैरिट आपने बताई, साइंटिफिक ट्रीटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेशन, यूटिलिटेरियन अप्रोच। अच्छी कोशिश है, आइडियाज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आए। चलिए नेक्स्ट। भारत की विभिन्नताओं के देश से आपने नैतिकता का बताया, उसके बाद परंपराओं की बात की, केंद्र विचार समानता की बात की, बहुत अच्छा, अच्छी शुरुआत है। मानवाधिकार की बात की, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बताया। दोनों समुदायों में समन्वय रखने के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, यानी अलग अलग समुदाय में विभिन्न धारणाओं सही हो सकती है, चलिए अच्छे पॉइंट लेके आए। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान रखा ताकि देश के बीच में संबंधों का असर ना पड़े, ठीक है। परिवहन के स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी, चलो बात है। सीसीटीवी आपने बढ़ाया, आपने काम करे। समय सूची, टिकट, यात्रियों की संख्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों के पास सुरक्षा बढ़ाई, अस्पताल, स्कूल अन्य को सूचित किया, सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। हेट स्पीच वीडियो का पता लगाया, फिर आपने संदिग्ध नियत वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया, आपने वो आइडियाज उठाए जो आइडियाज लॉजिकल है, तो इनको हम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मान सकते। अच्छी अप्रोच है, अच्छी कोशिश की। चलिए आगे। आपने अनुच्छेद 19 की बात की, आईटी एक्ट की बात की, उसके बाद बैन करने अनुमति प्रदान करता है वो बात की, निरंतर एआई की डीप फेक जैसी समस्या की बात की, व्यक्तिगत समाज में अराजकता हरवाने की बात की, और आपने आंसर को बिना सनसनीखेज बनाए अच्छे से कोशिश की। तो ट्रैक, मैं कहूंगा पहली तीनों केस स्टडीज में ये केस स्टडी फिर भी एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्कोर भी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरबी का बताया, आर्टिकल 19A बताया, 19(1)A बताया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आपने स्टेक होल्डर बताया, पुलिस डिपार्टमेंट, एसपी। बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर मत लेके आइए, उससे कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ठीक है, इतने काफी हैं, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपने प्रीलिम मेजर लिया, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, शॉपकीपर की डेथ को देखा, और उसके बाद आपने
चलिए आगे, आई वुड टेक द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन। इन्वेस्टिगेटिव पार्ट किया, एफआईआर किया, एमएलसी किया, पोस्टमार्टम किया, क्रिमिनल जस्टिस मैकेनिज्म चालू हो गया, सीनियर्स को आपने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, साइबर सेल ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑफ हेट स्पीच को पता लगाया। बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि जो ऐसी केस स्टडी, जैसा हमने पहली केस स्टडी पढ़ी थी नंबर 1 जो इस आंसर की है, ऐसी केस स्टडीज हमने पहले भी बहुत सारी पढ़ी, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Important stakeholders of shopkeepers like trustees and leaders association will be assured. Very good. I think this is a wonderful point. Police spies, intelligence, wonderful point. PCR, alert control, communal harmony committee. Do a police march in sensitive areas, increase police protection, timely reporting and taking a command from seniors. And I believe this is a wonderful and very, very applicable parts have been written in this case study. So case study number 3rd and the 4th, I would appreciate that. So no unified law. Law Report Commission, it is talking about CRPC Section 295, communal harmony, solution uh, a parliamentary law with uniform application. Bharatiya Kanun Samhita include this. Detection and early measures are required. Social media regulation code bill, and that's how it will. So I think 3rd and 4th, both the case studies I appreciate till now. They will get some score. First and second, they will not. First will definitely not get any score. In fact, the mark can even go into minus. Government official, civil society, then some outsiders, communal issue, national issue, shopkeeper, massive protest, SP. So proactiveness, first action, due process, ethical policing, hate speech, cold-blooded murder, strict measure लिए जाएंगे, spillover effect नहीं होना चाहिए. As an SP, I'll make sure to make the situation calm and composed and coordinate with several department and DM. सिर्फ यही डीएम को लेके आए, वरना अब तक एसपी साहब के बात होने के बाद तो कोई डीएम को लेके ही नहीं आया. सो कोऑर्डिनेट विद डीएम, ओरिजिनेट ऑफ द हेट स्पीच, टेक एक्शन. अभी इन्होंने भी वैसे कुछ काटा, लेकिन उन्होंने किया था, उन्होंने भी कुछ कर दिया था लेकिन काट दिया. टेक एक्शन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड जॉइंट टास्क फोर्स, वेट फॉर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्शन फ्रॉम हायर अथॉरिटी. सो माय कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन 1, डिटेल्ड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, objectivity, preventive measures by detention of hate speech. Prevention is better than firefighting attitude. Coordination with DM, team spirit. ज्यादा डीएम हो गया थोड़ा सा. डीएम ऑन बाय मेंबर्स प्रोटेस्टिंग, फैमिली विक्टिम, बिल्डिंग ऑर्डर, ट्रस्ट, सेंड रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज, डीआईजी, डिविजनल कमिश्नर, फ्लैग मार्च विद फॉर पीस विद इन डिस्ट्रिक्ट, शोइंग डिटरेंस. इतना आसान नहीं है फ्लैग मार्च के लिए भी. आप देख सकते हो, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के लीडर से बात हो सकती है. आप लोग सीधा कूद क्यों जाते हैं भाई? घर में तो आपकी चलती नहीं है, डिस्ट्रिक्ट चलाने की बात करते हो बिना बात के. हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आइए भाई. तुम्हारे हाथ में कुछ दे भी दिया गलती से तो तुम तो भाई सब खत्म कर दोगे. सिविल सोसाइटी टू अवॉइड controlling, avoid further fake news. Okay, present legal institutional mechanism needs slight tweaking. जो है उसी को भाई आप प्रमोट करिए अच्छे से. फैक्ट चेक यूनिट अच्छा पॉइंट है, अभी तक किसी ने डाला नहीं था. हेट स्पीच के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की बात की. एजुकेटिंग पब्लिक ऑन मीनिंग्स ऑफ हेट स्पीच, डिफाइनिंग हेट स्पीच, मीडिया एथिक्स एंड कॉम्प्रहेंसिव मेजर्स. तो आई थिंक ऑन ट्रैक. लेकिन जो उससे पहले हमने केस स्टडी पढ़ी, वो इस मामले में हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि इट इज रिफ्लेक्टिंग वेरी सिंपल एंड क्लियर पॉइंट्स. अब यहाँ भी देख लेते हैं. हमने यहाँ देखा, in this scenario there is disturbance of law and order along with threat to religious freedom of individuals. Mobilization on religious lines in the district which is known for tourism and cultural heritage. ठीक है भाई, आपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं. एसपी, रेजिडेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर, गवर्नमेंट, टूरिस्ट, ये चलेगा. चलो, इंटायर नेशन. कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन अवेलेबल टू एसपीआर. ऑप्शन ए, इंश्योर क्रैकडाउन ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स विद वर्किंग विद वो बिल्कुल ठीक बात है. मेरिट, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, डिटरेंस हो जाएगा, और पीस तो आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो लास्टिंग नहीं होगी, हो सकता है. ऑप्शन बी, वर्किंग विद क्रैकडाउन ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स विद अपील टू डिफरेंट कम्युनिटीज टू परसुएड देम टू चेंज एटीट्यूड. इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, पीस भी रहेगा, हार्मनी भी रहेगी. इट में टेक टाइम ऑब्वियसली. ऑप्शन सी, असर्ट, अरेस्ट द हेट स्पीच स्प्रेडर्स, इंश्योर इन्फोर्स सेक्शन 144 इन्होंने भी लगाया, गिविंग वार्निंग अगेंस्ट डिफॉल्टर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टेक मीटिंग्स विद कम्युनल रिलीजियस पीपल, परसुएड देम. वायलेंस सबडी हो जाएगा, इसकी कोई डिमेरिट ही नहीं बताई उन्होंने. सेक्शन 144 भी आप इतनी आसानी से नहीं लगा सकते. सीआरपीसी टू बी यूज स्प्रेडिंग ऑफ हेट स्पीच, स्टॉप थ्रू आईटी एक्ट 2000. प्रिकॉशनरी डिटेंशन एंड अरेस्ट ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स,
इमीडिएट अपील टू रिलीजियस बॉडीज, अपील टू रिलीजियस ग्रुप्स। देखा, अपील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपसे बताया, हार्मनी के लिए, सारी चीज के लिए। लॉन्ग टर्म एक्शन में कॉग्निटिव एटीट्यूड की बात की इन्होंने, अवेयरनेस, हम में से किसी ने नहीं बोला, मैंने आपको पहले ही कहा था वो कुछ होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैंपेन होना चाहिए, और हमारी हेरिटेज की बात होनी चाहिए, आप में से किसी ने नहीं की। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। और मीनस ऑफ हेट स्पीच इन सोसाइटी की जो बात है उसमें सेक्शन 144 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्शन 153A, 153 भी आईपीसी, सारे इन्होंने बता दिए। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में साइबर क्राइम यूनिट्स, ठीक है, उनका रोल होना चाहिए। इंटीग्रेटेड क्राइम कंट्रोल सेंटर होने चाहिए। तो नो कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन हमने भी बोला। सप्रेस और लिबर्टी ऑफ पुलिस, सुप्रीम कोर्ट की बात इन्होंने भी की, हमने भी की। एम्बिग्यूटी इन डिस एम्बिग्यूटी इन डिसअफेक्शन हेटर्ड, इनमें होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या आप मतलब डिसअफेक्शन यानी आप डिस किसी चीज से नाराज हैं कि वो वाकई हेट है, दोनों में फर्क होना चाहिए। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग राइट्स, देयर नीड टू बी केस ऑफ मेंटेन बैलेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच। तो हम भी इसी जोन में बात कर रहे हैं, जिस जोन में जो हमने मॉडल आंसर पढ़ा। तो आप क्या कहते हैं दिव्या, और कैसे आप नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करने वाले हो? सर और जो पॉइंट्स ला सकते हैं वो लाने की कोशिश आप करेंगे, और थोड़े से जो फैक्ट्स आप और लेके आ सकते हो। फैक्ट्स आई थिंक आपको प्लीज। लेके आने थोड़े से। हाँ चल। सर और थोड़ा डीपली सोचना था, हम्म ताकि वो पूरी मतलब सारी सिचुएशन को पूरी फुल तरीके से डील करे। अभी मतलब आधा अधूरा लगा जितना लिखा। हम्म ओके, मानसी, व्हाट डू यू से? तो मेरे को और थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ लिखना है, एक्सट्रीम चीजें नहीं लिखनी। हाँ, जो सेंसिबल बात नहीं है उसमें यू गोना लूज ऑल द मार्क्स। आशिक, व्हाट डू यू से? हाउ मतलब अच्छा लिखा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा डीएम थोड़ा ज्यादा हो गया, बस लाना सर चाहिए अपील थोड़ा। वाला जो उस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था बस। और बाकी फिर देख लूंगा एक बार बाकी सबक की स्टडी। ज्यादा वो नहीं, बाकी 5% की बात है, बाकी सब ठीक है। हमारे पास बहुत सारे आइडिया थे, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने लिखे हैं। तो आई थिंक दे मस्ट बी कंटिन्यूइंग ऑन द सेम लाइंस। और अब हम नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम सफर फ्रॉम मेनी वन ऑफ द मेजर इश्यूज इज द फोकस ऑन द रोट लर्निंग व्हिच हैज बीन द स्टेपल ऑफ इंडियन फॉर मेनी इयर्स व्हाइल मेनी इंडियंस हैव अटेन्ड सक्सेस डिस्पाइट दिस सिस्टम। सिंपली बीइंग एबल टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ इन टुडेज वर्ल्ड। सही बात है, मोबाइल फोन पे सब कुछ है। फिर उन्होंने कहा 14% इंडियन ग्रेजुएट्स प्रिपेयर फॉर वर्कफोर्स लार्जली बिकॉज मोस्ट ग्रेजुएट्स अनएबल टू अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है रोट लर्निंग के, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ यंग स्टूडेंट सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द इशू। चलिए ये देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेट मी सी हाउ यू हैव हैंडल्ड दिस। अब इसमें भी के कोट आ सकता था शुरू में। क्या है एजुकेशन? एजुकेशन क्या है आप लिख सकते थे, कोट लिख सकते हैं एक, उसके बाद कोई फ्रेज बता सकते हैं। बेडरॉक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वैल्यू स्किल्स ऑफ फ्यूचर लेबर फोर्स है सिर्फ। अरे एजुकेशन सिस्टम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। या एजुकेशन इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा एक समय के बाद अगर एजुकेशन को ढंग से नहीं हैंडल करेगा। तो आप तो सीधा फिर से फैक्चुअल एलिमेंट पे आ गए, एनईपी लेके आए, लेकिन ये एथिकल पर्सपेक्टिव से है। स्टेक होल्डर में आपने स्कूल, यूनिवर्सिटीज, चिल्ड्रन, पेरेंट, टीचर, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट, कंट्री और कंपनी, सभी स्टेक होल्डर हैं। चलिए आगे, थोड़ा अच्छे और अच्छे कीवर्ड्स आ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है रोट लर्निंग? विच इज द एबिलिटी टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट मेरिट एंड रेशनल थिंकिंग। आप कम से कम यहाँ पर आप सबके सब लेके आ सकते थे जो इस बार यूपीएससी ने ऐसे का ऐसे ही दिया था कि जो असली एजुकेशन होती है तो स्कूल के बियॉन्ड शुरू होती है, स्कूल नेवर कम्स इनटू पिक्चर। तो आप भी वो चीज यहाँ लेके आ सकते हैं कि स्कूल इंपॉर्टेंट है लेकिन स्कूल बेस बनाता है, तो रोट लर्निंग को जोड़िए उससे। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ पैरोकियल माइंडसेट, फोकस शुड शिफ्ट टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आप लाइए। कैसे गांधी जी इस बात को कहते थे, इसलिए उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, विद्यापीठ, और इवन हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसी दिशा में सेटअप किए गए, लेकिन बाद में चीजें बदल गई। मार्क्स ड्रिवन एंड नॉट स्किल ड्रिवन सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। मोर ड्रॉप आउट्स, प्रेशर लेके आइए। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते करते वो हो गए हैं और आप यहाँ पर कोई प्रेशर की बात लेके ही नहीं आ रहे हैं। रोट लर्निंग का ही प्रेशर है कि आदमी अपनी जान तक ले लेता है, वो सोचना नहीं चाहता, वो रटना चाहता है। वो चीजें आप क्यों नहीं लेके आ रहे?
Household level, attitudinal change of parents need to let the child identify the areas of interest. Lack of knowledge of parents can be addressed. रेगुलर सेमिनार, अब हर सेमिनार आप सेमिनार की जगह आप कह सकते हैं कि स्कूल का ही अप्रोच पूरा जो आपने NEP 20 की बात की उसको लेके आइए। प्रमोटिंग स्किल्स कैसे वो लेके आइए। उसके बाद जो है आपने बात की आपने शेपिंग करिकुलम, तो इसमें एथिक्स कहाँ आया पूरे केस स्टडी में, मैं ये जानना चाहता हूँ। बाकी सारी बात तो ठीक है, आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, तो कॉन्सिक्वेंसेस में आप लेके आइए कैसे जो समाज है उसको कॉन्सिक्वेंस पे करने पर, कैसे पूरी सोसाइटी में 10-20 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। स्पोर्ट्स में अगर आपको पावर हाउस बनना है तब भी आपको मेंटल एटीट्यूड चाहिए, फिजिकल नहीं चाहिए, मेंटल चाहिए। मैंने आपको एक अभी रिसेंटली आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल आल्सो कि आप देखिए कि विक्ट्री स्पीच देखिए, विक्ट्री स्पीच में हम्बलनेस है, ये हमारे यहाँ कोई सीखना नहीं चाहता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मेरे पापा MLA हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, मेरे पापा IAS IPS हैं, बस हो गया। तो वो आइडिया लेके आइए ना, हीरो वर्शिप लेके आइए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रोट लर्निंग लैक स्किल इन यूथ हैविंग शार्प माइंड्स। चलो कॉग्निटिव थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। रोट लर्निंग को आपने क्यूरियोसिटी, बिल्कुल ठीक बात है, वर्ड लेके आ रहे हो आप। You to just text, whereas in competitive world comprehensive understanding is needed, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा और सिंपल होगा, आप लगातार लिखते जाइए। कोलैबोरेशन बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने टीचर स्टूडेंट का। रोट लर्निंग से आपने बताया स्कूल सिस्टम प्लेग्ड है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद आपने बताया रिकमेंडेशन ऑफ NEP, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक बात है। हॉट्स जिसको हम कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात भी होने लगी है। एजुकेशन मस्ट बी, चलिए आगे, एजुकेशन मस्ट बी नेशनल प्रायोरिटी, ये भी आपने बात की। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ठीक है, एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। एजुकेशनल सब्जेक्ट की बात की आपने आपको आंसर लिखते टाइम आंसर को एंजॉय भी करना है, उसको फिट करना है। वो जब भी हो पाएगा जब आप थिंकिंग बेस्ड करेंगे, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आई थिंक ऑन ट्रैक चल रहा है, लेकिन थोड़ा डल हो जाता है जब एक जैसे एलिमेंट्स आते हैं। चलिए आगे। हाँ, हमने पहले भी पढ़ा था सा विद्या या विमुक्ति, ये तो खैर हमारे मॉक्स हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सेम सेम ना लिखें, अलग अलग लिखिए। शिक्षा हमें मुक्त करती है, तार्किक संवेदनशीलता, बिल्कुल सही बात है। देश में रट कर सीखने से क्या प्रभाव हुए, शिक्षा मनुष्य गुणवत्तापूर्ण, आपने बात की। रट कर सीखने से असीमित विकल्प खत्म हो जाते हैं, ठीक बात है। भारत में कौशल की बात हो रही है, नेशनल स्किल मिशन की बात है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने अभी अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट भवन का इनॉग्रेशन किया था। आप जो डेली न्यूज़पेपर में जो महीनों महीनों से जो चर्चा कर रहे हैं उसका एलिमेंट्स को लेके आइए। आप कुछ लेके आना नहीं चाहते हैं, चलिए आगे। आप लोगों को लगता है ऑलरेडी हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की नौकरी मिल चुकी है। यही कारण है कि छात्रों को नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। रटकर सीखने के कारण वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, ठीक बात है, ठीक बात है। चलो तार्किक संज्ञानात्मक वृद्धि नहीं हो पाती है। आप बात कीजिए जैसे जिन लोगों को पद्मश्री मिल रहा है, कितने सारे लोग ऐसे हैं, क्या वो स्कूल गए थे, वो रटकर उन्होंने कुछ किया है? फोक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, वो किसानी कर रहे हैं, वो सब हमारे टीचर ही तो हैं। कौन है शिक्षक? वही आदमी शिक्षक है जो आदमी अपने काम को प्रैक्टिकली कर रहा है। चलिए आगे, चलिए। संग्रहालय के माध्यम से भूगोल, चलिए आपने कोशिश की, अच्छी अच्छी कोशिश है इस आंसर में। चलिए, गुणात्मक शिक्षा, आभासी वास्तविकता, बिल्कुल बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। गुणवत्ता की बात की, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, क्षेत्रीय कौशल, चलिए चलिए। खेल और स्वास्थ्य, चलिए बहुत अच्छा। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, पर इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। Former Education Secretary Anil Swarup mentioned in his report that despite breakthrough efforts by government, education system facing various challenges: rote learning, private versus public divide, no importance to vocational education, unreaped benefit of education, semi skilled education। अभी तक तुम में से किसी ने भी ना, मतलब जब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा रोट लर्निंग वाला है, तभी तो इतना बड़ा टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री खड़ा हो गया। हर गली कूचे के ऊपर इस कोचिंग के नोट्स और उस कोचिंग के नोट्स क्यों चलते हैं? तो वो भी इसी का एक इल इफेक्ट है, वो भी लेके आओ ना, क्यों नहीं लेके आए?
नो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेयर लर्निंग एंड एकेडमिक्स विल बी इंस्टिल्ड, अनसेटिस्फाइड एजुकेटेड यूथ, बिल्कुल सही बात लिखी है इन्होंने, अपने आप से जोड़ पा रहे हैं। अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयड यूथ, ये भी अपने आप से जोड़ पा रहे हैं। मोर मेंटल स्ट्रेस इन द लेटर कोर्स ऑफ लाइफ, ये तो बिल्कुल सच है, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ये दिन रात। अंडर द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ एआई, machine learning, data analytics, rote learning will hamper innovation. Youth will not be able to take calculative risk in their life, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। Challenges will not be handled by youth, किताबी ज्ञान, ये तो मेरा शब्द इन्होंने लिख ही दिया है। खैर, education focuses on learning from books and their practical application in various challenges, conflict of interest in our life। गांधी जी के talisman को लेके आए, बहुत बढ़िया। रियल एजुकेशन की बात की, और उसके बाद उन्होंने क्या बताया, इफेक्टिव वोकेशनल स्किल्स, स्टेट ऑफ आर्ट, इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड लर्निंग, ट्रेन टीचिंग स्टाफ, और टीचर्स के लिए बात की, जॉब क्रिएटिव एटीट्यूड की बात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, करिकुलम की बात की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाया मिड टर्म इंटर्नशिप की बात की, डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लर्निंग की बात की, दिशा प्रोग्राम की बात की, सुरसा ऐप फॉर डिजिटल टीचर्स ट्रेन सर्टिफिकेट, नैक रेटिंग, बहुत सारे इन्होंने आइडिया दिए, पीएम श्री, KVI, शहीद मॉडल स्कूल, मतलब इन्होंने काफी सारे एलिमेंट सब कुछ दिए। थोड़ा सा सिंपल रखते, ये थर्ड आंसर में था, तो आई थिंक अमेजिंगली रिटर्न, वेल अप्रोच। यहाँ भी देखते हैं आप, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सोसाइटल इम्प्लीकेशन, पेरेंट, टीचर, चिल्ड्रन, स्टेक होल्डर है, साइंटिफिक स्पिरिट, क्यूरियोसिटी, तो यहाँ पर आप DPSP लिख दीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कीजिए, स्वामी विवेकानंद की बात की आपने, ठीक बात है। चलिए आगे, यूजफुल फॉर गेटिंग आंसर्स, राइट टू डिफाइन क्वेश्चन सिलेबस, इट विल बी सूटेड टू द सेक्टर वेयर वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, चलो आपने एक अच्छा है, आई लाइक दैट कि आपने उसका प्लस पॉइंट भी बताया। इनेबिलिटी बताइए आपने, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, क्यूरियोसिटी बन नहीं पाती है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो सेक्स कैन बी सीन इन आवर डेली लाइफ्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो सेक्स एजुकेशन इज सीन इन डेली लाइफ। अब ये ऐसा एलिमेंट है जिसको ठीक से पुट अप करना चाहिए था, ये थोड़ा सा मतलब आपने क्यूरियोसिटी रेज करके छोड़ दिया, अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज है इसके, अब देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बॉय, डिफरेंट गर्ल्स, नो दिस इज नॉट फेयर एग्जैक्टली। सो मार्क्स तो देखते हैं, मतलब ये कोई बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच नहीं है। लर्निंग वाइल फीलिंग, किल्स लर्निंग वाइल फीलिंग, विच हेल्प्स इन जनरेटिंग इमोशंस, इंटरेस्ट, साइंस टू ह्यूमैनिटीज, ठीक बात है। मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, बिल्कुल ठीक बात है। एंड इमोशनलेस बीइंग, हेट स्पीच, अच्छी कोशिश की, अच्छा है, सिंसियरिटी दिख रही है। लेस सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स, मेजर्स NEP 2020, इंटीग्रेट, earn while you learn, for promoting spirit of work, self-sufficiency, integration of MSME, ITI, mother tongue for early education, core concept in science, humanities plus science field for 360 development of science, higher education, IIT, new skills, upgradation by Atal mission. Therefore, PM Shri is working on, I think, good approach, good efforts, संभाल लिया आपने आंसर को बाद में। Let's get to the final model answer, let's see. There is lack of proper skilling in the Indian workforce education system as per social, इन्होंने भी डेटा बताया, चलो अच्छी बात है, स्टेक होल्डर बता सकते थे, एक कोड दे सकते थे, एक फ्रेज दे सकते थे। एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक बात है, चलो इन्होंने एस्पायरिंग माइंड्स का दिया कि 47% आर नॉट एम्प्लॉयबल, चलिए आगे। एम्प्लॉयमेंट दैट दे गेट वुड बी नॉट that they would be not well paying, okay, poverty, this is an ethical point, मैंने बोला भी था आपको, incidence and vulnerability, marginalization, demographic dividend, चलिए आगे। critical thinking हमने भी बोला है, lack of scientific rationality, moral intelligence, emotional intelligence, empathy, compassion, सब कुछ ही ले आए, कुछ बचा है, मतलब अपने आप को ही गालियां दी जा रही हैं। good bad right wrong, had to underutilization of innate abilities, चलिए थोड़ा इनोवेटिव हो सकता था पर इतना नहीं है। I like this spirit of rationality, critical thinking, stop blind belief in authority, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है। थोड़ा सा सोच के लिखा जा सकता है कि कैसे रोट लर्निंग को ब्रेक करने से स्टूडेंट्स आर एबल टू इवन चूज गुड गवर्नमेंट लेटर ऑन, कैसे लोग होंगे, जैसी जनरेशन होगी वैसा करप्शन भी कम हो जाएगा, रोट लर्निंग नहीं होगी तो करप्शन भी कम होगा, क्योंकि आप सोच के कर रहे हो तो आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, आप अचानक से आप मतलब हर चीज को करने से पहले आप ये नहीं सोचोगे तो हो ही नहीं सकता। रोट लर्निंग नहीं होगी तो आप डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। देयर शुड बी टीचिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, दिस इज अ गुड आइडिया, चलिए आगे चलिए। उसके बाद आपने बोला कि टीचिंग की बात की, उसके बाद वोकेशनल की बात की, फोकस ऑन इंक्लूजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड वुमेन, चलिए टीचिंग अबाउट रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट,
डिग्निटी ऑफ एल्डर्स, डिग्निटी ऑफ एल्डर, इफ आई एम डिग्निटी ऑफ लेबर इश्यूज, हाँ एल्डर्स की बात भी होनी चाहिए थी। मोरल एजुकेशन, इम्पार्शियलिटी, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब इन्होंने एक कोड डाल के इसको खत्म कर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज परफेक्ट आंसर, बट देन यस, एफर्ट्स हैं, हम भी इसी डायरेक्शन में और अच्छा कर सकते हैं। तो आंचल, व्हाट डू यू से कि कब तक प्रोसेस चलता ही रहेगा और बेस्ट आंसर नहीं आएंगे, ऐसा आपको कब तक लगता है? सर इम्प्रूव तो हो रहा है, लेकिन तब तक सर फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। हाँ, तो फुल्ली पार्टिसिपेट कीजिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और शो कीजिए। लाइफ इज इन आवर हैंड्स, वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। दिव्या, आप क्या कहते हो? जी सर, और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है और थोड़ा सोच के और एंजॉय करते हुए लिखना है। ओह, थैंक यू, आई लाइक इट। मानसी, आप क्या कहते हो, कैसे हो पाएगा? सर मेरे को थोड़ा और एम्फेसाइज करना है एथिकल एलिमेंट्स के ऊपर, एथिक्स के और एलिमेंट के ऊपर ज्यादा और फोकस करना है। सोचने के ऊपर, सोचने पे कुछ करना है आपको कि भाई क्या सोचना है? सो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा न्यूज़पेपर का जो डेली रिवीजन है उस पे थोड़ा और मैं फोकस करूंगी। ओके, आई थिंक देयर इज अ स्कोप, और स्कोप है, बिल्कुल है, और स्कोप आगे बढ़ाइए। औशिक, व्हाट डू यू से? थोड़ी क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस और सिंप्लिसिटी मिसिंग है। हाँ बोलिए, आप क्या कहते हो औशिक? हाँ सर, वो फोकस करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ज्यादा नहीं, तो थोड़ी सी। प्रवेश के आंसर्स कई जगह आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट, कई जगह आज अच्छा था, मतलब ही रियली शोड अ काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी इन अप्रोच। हाँ सर। सचिन, आप क्या कहते हो इन सब के लिए? हर एक केस स्टडी क्वेश्चन की अपनी डिमांड होती है। जैसे इससे पहले वाला किया था तो उसमें टेक्नोलॉजी फैक्ट चेक यूनिट है, सेंसिटाइजेशन देखना, तो और जो हम न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं उसके टर्म्स को लेके आए। हाँ तो सर बिल्कुल। इस तरह से कर सकते हैं सर। इसमें करना है तो जो हमने आइडियाज पढ़े महात्मा गांधी के या फिर उस हाँ बिल्कुल, टीचिंग से रिलेटेड प्लेटो है, हमारे महात्मा जो। गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों हुई थी, आप किसी का भी पढ़ लो। अस्तोमा सदगम है, तमसोमा ज्योतिर्गम है। यानी हमें जो है वो प्रकाश की ओर लेके जाता है पढ़ाई। एक लाइन दो लाइन बतानी है। रोट लर्निंग, डर, रोट लर्निंग के पीछे फियर है, उस पर आपने फोकस ही नहीं किया। रोट लर्निंग के लिए फियर चाहिए, और फियर के लिए सबसे पहले बंद दिमाग चाहिए। सिंपल सा ताना बाना बनाना था। रोट लर्निंग को तोड़ने के लिए फियर तोड़ना पड़ेगा, और फियर को तोड़ने के लिए सच बोलना पड़ेगा। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग एंड राइटिंग। पर नहीं, आप तो क्वेश्चन मिलता है और भाई साहब बस रोट लर्निंग का प्रयोग करके मेमोरी का बटन दबा देते हो और लिखते चले जाते हो। मैं चाहता हूं, अगर वाकई इस साल टक्कर लेके आगे आना है तो हमें जो ये आंसर लिखे जा रहे हैं, जो 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 हम मॉडल आंसर देख रहे हैं, आने वाले जो अभी स्टूडेंट जो अभी लिखेंगे वो इनके ही बाप होंगे। वो इसी को, इसका बेटर वर्जन बन के हम नहीं जीत सकते, हमें अपना बेटर वर्जन बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपना, यानी मेरा, जैसे अब मैंने प्रवेश के आंसर्स में देखा कि वो किसी का कॉपी नहीं हो रहा है, लेकिन एक फ्लो आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा करते करते अभी वी हैव लॉट ऑफ टाइम एंड वी विल वर्क ऑन इट। बट देन स्टिल औशिक का भी ठीक है थोड़ा सा, मतलब लेकिन फिर भी और अच्छा हो सकता है, बट नॉट रियली सेटिस्फाइड। और मानसी तो खैर अभी शी इज येट टू ब्रिंग दैट बेस्ट इनटू इट, क्योंकि गलत तो होना ही नहीं चाहिए, वी कांट अफोर्ड। So we'll continue on the same lines. Thank you very much. Wishing all of you all the best. We'll continue working on the same lines.